आज मेरा सबसे पहला प्रणाम जाता है मेरे जीवन की सुगंध, द बुके ऑफ लाइफ, उसकी एक बहुत बड़ी सुगंध, श्री जीवन पानी। सुबह से मेरे आंसू रुक नहीं रहे। बहुत व्यर्थ मेहनत मैंने की। आई हैव ट्राइड टू स्टॉप माई टीयर्स। Why should I stop them? जिस व्यक्ति का मेरे जीवन में न केवल मेरे माता पिता, पूज्य दादाजी, मेरे भरतनाट्यम गुरुजी, मेरे ओडिसी गुरुजी, मेरे भाई बहन, इनसे भी बढ़कर जिनका योगदान है मेरे जीवन में, उनकी याद आज करने का मौका है। तो आपको ले चलती हूँ उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति विशेष के पास जिनका जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। Words fail me, and I feel that in these ungrateful times, at least for a few moments, if we are together in offering our homage to a great soul whose contribution remains unassessed, unspoken, untold. Khair, born in Odisha's Mayurbhanj district, headquarters Baripada, on 13th February 1932. I'm wearing one of the saris he gave me when I tied him the Raksha, Rakhi. He became my Rakhi brother, 1972 onwards. And this is one of the saris I've preserved. You can see it's a rare sari. You can't see the patli, the pleats, huge expanse, hand woven. One of my treasures. His early schooling, college, and then he got married on 9th February 1961 in Cuttack to Reba Sadangi, who was born in Jagannath Puri on 29th December 1942. 10 वर्ष छोटी थी भाभी, रेबा भाभी भाउजा, और उनका जन्म हुआ था पुरी, जगन्नाथपुरी इन उड़ीसा, लेकिन विवाह हुआ कटक में just as she became 18. और जीवन पाणी जी का पहले से ही जो झुकाव था towards reading, towards writing, creative mind, बहुत पहले से उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया था. And eclectic reading, न केवल ओडिया लिटरेचर, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, म्यूज़िक सुनना. तो भाउजा बताती थी that on the wedding night he posed a couple of questions to her. One of them was,
ए तुम्हें जानी छो सुनी छो बेथोवन किए बेथोवन कौन था and you can imagine poor 18 just turned 18-year-old newlywed Reba. You'll have to know. Then he tells about Beethoven, the great music composer of Germany, of the Western music, one of the greatest. And Bhauja used to tell me, आँख बड़ी करके सुन रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. But that was how he prepared her for the journey of a lifetime with him. 10 years difference, he loved his wife, but she also became, let's say, his disciple in many ways. Their first child, Ruchira, daughter, was born already in 1962. And the last one, Nilina Mamli, was born in Delhi in, when was she born? In 1972. So in the course of 10 years, they had 5 children. They had Ruchira, they had Nimisha, they had the son Soumik, they had Maunik, the second son, and the 5th is daughter Nilina. So it was a full family, and he joined Odisha's State Education Service. When I went back to Odisha after returning from abroad to Delhi with my Oriya husband, I used to have conversations with Dr. Mayadhar Mansingh, my father-in-law, as I told you earlier, in earlier sessions. And one of my questions was, Bapa, what is the aesthetics of Odissi dance? And Bapa said, I can't answer that, but I will introduce you to one person who I think will answer you. And then, very soon after, उन्होंने फिर से गाड़ी मंगवाई और हम लोग चले गए पुरी, जगन्नाथपुरी. आप देखिए बापा का विशाल हृदय. He could have just made up something, you know. No. And खोजते हुए जीवन पाणी के घर पहुँचे. He was living in a small, I think it was 2 flats, and बाहर दौड़ के आए, and of course fell at Papa's feet, and Papa as usual said, "E mor bohu Sonal, say kichi pacharibo, that's why I brought her here to you." Simple. This is my daughter-in-law Sonal, she has a few questions, and so I brought her here, all the way from Cuttack to Puri. And of course, Jalkya, you know, Reba Bhauja came out. Later on, we were going through all our memories, and Jalkya meaning nasta pani. बात करते करते शाम हो गई. I think खाना भी हो गया. And of course, he said, "Why do you go to Circuit House? इधर ही रह जाइए." I remember, I think they had a little veranda, the entry, and then a big hall, a big room, in which there was a big 4-poster bed, और उनके बच्चे आसपास घूम रहे थे, मे बी वो 3 थे 4 थे उस वक्त, और अंदर किचन था, and I think a little bathroom and toilet and whatever. And Bapa very simply said, "Okay." Jeevan Pani's neighbors had gone out, leaving the key with them. So Jeevan Pani, the neighborly relations, कितना you know एक पड़ोस पड़ोस का जो एक रिश्ता होता है, यानी ये दरवाज़ा खुला, ये दरवाज़ा पड़ोस का है. तो उनके यहाँ हमें ठहरा दिया, और पापा सो गए उस पे पलंग पे, और मैं लेटी, आई थिंक सोफ़ा या कुछ और एक छोटा सा था, उस पे लेट गई. ये लोग अचानक लौट आए,
आई थिंक अराउंड मिडनाइट और समथिंग, मुझे जो याद पड़ता है. एंड खटखटाया दरवाज़ा, उधर से जीवन पाणी जी भाग के आए और मैंने उठ के दरवाज़ा खोला एंड टॉर्च, मुझे याद है टॉर्च पड़ी मेरे मुंह पे एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग चोर चोर को. अरे जीवनदा बोले नहीं नहीं ये तो थोड़ा ऑल्टरकेशन हुआ एंड बापा पुअर थिंग हैड टू बी वोकन अप और जीवनदा ने माफ़ी मांगी, चले गए जीवन पाणी जी के फ्लैट में बगल एक ऐसे. आई फेल्ट सो बैड, मुझे अभी तक याद है. इमीडिएटली जीवन पाणी जी एंड रेबा भाउजर, बच्चे सारे, इतना बड़ा उनका बेड था, सब उठ गए, उतर गए थे. दे अकोमोडेटेड बापा. तो बापा स्लेप्ट वर्टिकली एंड आई स्लेप्ट हॉरिजॉन्टली एट हिज फीट. ये मुझे इतना याद है कि देखिए बापा के आशीर्वाद मुझे कितनी तरीके से मिले हैं. और सुबह खैर वो नेबर्स आए, माफ़ी मांगी, पता नहीं था कौन है वगैरह. फिर पूरी जगन्नाथ मंदिर दर्शन के लिए गए और जो ये बातें हुई थी शाम को, यू नो द डिस्कशंस वी हैड वर सो फैंटास्टिक दैट बापा सेड नाउ यू कीप अप विद जीवन एंड वी डिड कीप अप. तो 1968 में 1968 again I was in Cuttack for a long spell. And Jeevan Pani ji told Papa the Chaitra Purnima festival in Baripada, the Chau festival. आप बहू को लेके आइए, मैं भी जा रहा हूँ. That was his birthplace. So we went from Cuttack to Baripada, Mayurbhanj. Jeevanda was already there. और मुझे याद है कि fantastic festival. Dakshina Sahi, Uttara Sahi, the groups. And the Maharaja of Mayurbhanj, then the princely state, had already merged with India. But these were the princely families who had, which had encouraged and also learnt, the princes had learnt Chau. And the great Maharaja Upendra Bhanja, Kavi, what was this, Kavi Samrat, Kavi Surya, Upendra Bhanja, fantastic poet. तो वो उनका फैमिली, द भंज फैमिली. बाय द वे द भंजर्स ऑफ बस्तर इन मध्य प्रदेश, द लास्ट रूलर प्रवीण चंद्र भंज देव was assassinated by then ruling party mafia. This is a known fact. I'm only repeating what has been said again and again. And he was a great Devi Bhakta, as were these people. Okay. So the Uttar Sahi, Dakshina Sahi kind of a competition of various items, various dances of Chau I had never seen. मैंने सड़ाई केले का Chau देखा था बम्बई में when I was in college. सुधींद्र देव सड़ाई केला के राजकुमार, but that is with the mask and very soft movements. ये जो Chau मैंने देखा, बाप रे, मेरी तो आंखें फटी रह गई. And later on I had also performed in Baripada a couple of times or more. उसके बाद मुझे ले गए दूसरे दिन या तीसरे दिन, हम रहे थे वहाँ 4-5 दिन रहे थे. Jeevanda was a wonderful photographer amongst his many other talents. बाद में मैं बताऊंगी कि जीवनदा क्या नहीं थे, बोलना मुश्किल है. फोटोग्राफी उनका शौक था. मुझे एक स्टूडियो ले गए और लाइट वाइट थोड़ी एडजस्ट करके उन्होंने जो कुछ फ़ोटो खींचे थे उसमें से ये एक तुरंत मिल गया है. आप देखिए 1968. और हाँ, तो ये 1968 का है जब मैं नृत्य करने बाद में गई. आई थिंक क्या Chau पर्व का नहीं होगा, बाद का होगा, खैर जो भी है. तो दैट वॉज अ वंडरफुल आई ओपनर. उसके बाद हम वापस आए और इसका नतीजा ये हुआ, द रिजल्ट वॉज दैट आफ्टर जीवन पाणी जी हैड शिफ्टेड टू दिल्ली, उस पर मैं बाद में आऊँगी, बट जस्ट टू जॉइन द स्टोरी लाइन. In 1973, जीवन पाणी जी
brought Guru Anand Charan Sai, Kadu Babu. He had one eye, एक आँख चली गई थी. Great master of Chhau. आज हम जो छाऊ बोल के देखते हैं, लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत डाइल्यूट हो चुका है. एक महीना he stayed with me in Delhi. मुहरी वाला भी आया था, ढोल वाला भी आया था. लकड़ी की तलवार, लकड़ी की ढाल, और उससे उन्होंने मुझे छाऊ सिखाया. And I became the first ever woman to learn मयूरभंज छाऊ. मैं पहली स्त्री बनी, पहली महिला नृत्यकार जिसने ये छाऊ सीखा. और ये क्यों हुआ? Again my query, my curiosity. जीवनदा ओडिसी तब तक मैं काफ़ी सीखी थी, कर रही थी प्रोग्राम्स. जीवनदा, लास्य एंड तांडव आर बोथ एलिमेंट्स टू कंप्लीट एनी शास्त्रीय डांस स्टाइल. भरतनाट्यम में दोनों है. ओडिसी लास्य प्रधान है, तांडव कुछ उसमें दिखता नहीं है. तो आफ्टर सीइंग छाऊ मुझे लगा कि यही ओडिसी का एक्सटेंशन कहीं तांडव में तो नहीं है. और भी चीज़ें उसमें थीं छाऊ में, लेकिन जो चौक है, धरण जिसको कहते हैं, त्रिभंग है, जो चालियाँ हैं, तो कहीं इसको मैं उस नज़रिए से देख सकती हूँ क्या? एंड जीवनदा सेड ऑफ कोर्स, चलो करते हैं. एंड ही गॉट. ये मैं क्यों बता रही हूँ? अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट दैट आई ब्रॉट मयूरभंज छाऊ टू दिल्ली एंड जीवनदा, इट वॉज जीवनदा, लेकिन कि जीवन पाणी नेवर पुट एनीवन डाउन. कुछ पूछा जाए तो सोचते थे, कभी ये नहीं कि अरे चुप रहो, हाँ तुम क्या जानो, नहीं ठीक है. नो नो नो, उस पर सोचेंगे, विचार करेंगे, और फिर he'd come up with a response. बहुत बड़ी बात है. तो ये छाऊ वाला हुआ. अब गोइंग बैक टू जीवन पाणी जी's लाइफ, के 67, 68, 69 चला गया. 1970 में श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय, one of the greatest revered names, again forgotten today, almost forgotten, of our history of not only independence, but the resurgence, the renaissance, the recreation, the re-navigation of Indian handlooms, handicrafts, masks, what not. It was Kamala Devi जिन्होंने ये फिर उठाया बीड़ा. ना शी रिफ्यूज टू जॉइन नेहरू's कैबिनेट. बोले नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा ये काम है. एंड अ ग्रेट स्कॉलर. शी ऑल्सो herself came from like my Guru Patni Chandrabhaga Devi ji from Karnataka, from that area which is rich, the coastal area, rich in culture, literature, performing arts, visual arts. और Chattopadhyay, because she was married to Harindranath Chattopadhyay, the brother of Sarojini Naidu. तो कमला देवी जी की शार्प आंखों ने जीवन पाणी को पहचाना. She recognized his merit, his talent, and invited him to come to Delhi. तो 1970, 1970, जीवन पाणी with the family came to Delhi for some projects given to him by Kamala Devi ji. Kamala Devi ji was also known to my family very well, as my mother had also gone with her on the first women's delegation to USSR in 1954. Kamala Devi ji was a leader. Only 20 women in that delegation, selected from all over India. There were Srimati Sheila Bharatram, Sucheta Kripalani,
my mother, Pilu Wadia. These are some of the names I remember. तो कमला देवी जी का मेरे परिवार के साथ भी बहुत अच्छा संबंध था. And I used to regularly go and meet her. India International Center, जो आज एक क्लब जैसा बन गया है, it was truly India International Center, a center for artistic intellectual activities. दुर्गाबाई देशमुख, डॉक्टर C.D. देशमुख, कमला देवी जी, ऐसे महानुभाव का वो सेंटर रहा. वहाँ जाके मैं उनसे मिलती भी थी. मेरे छोटे से जहाँ मैं थी वो आती थी. And I used to carry little tiffin carrier for her. She used to love our food. तो मुझे तो कुछ विशेष आता नहीं था. जो भी आता था थोड़ा ये खिचड़ी बनाई, ये बनाई, थोड़ी कढ़ी बनाई, मैं छोटा टिफिन कैरियर उनके लिए ले जाती थी. Anyway, जीवन पाणी जी came with the family 1970. I started meeting him also. और उनको वहाँ पर संगीत नाटक एकेडमी में अकोमोडेट किया गया. And he came, actually he was brought on deputation from Orissa, on deputation from the State Education Ministry of Orissa. ये याद रखना आवश्यक है क्योंकि बाद में इसके तार जुड़ेंगे. I used to meet him 1972, as I had mentioned in my session about Guru Kelu Charan Mahapatra ji, that when I was kicked out by him, 1972 May, directly from that house I went to Sangeet Natak Academy, Jeevan Pani ji's room. सीधी मैं वहाँ गई और वहाँ उनके सामने रोई. जीवन दा ने मेरे सर पे हाथ फेरा, मेरे आंसू पोंछे. जो आपके आंसू पोंछता है जीवन में, मैं फिर कहती हूँ, कभी उनको मत भूलिए. आंसू आपकी आंख में लाने वाले बहुत होते हैं, आंसू पोंछने वाले कोई क्वचित. Okay, you understand what I said? There are many who will make you cry. There are very few who will wipe your tears. Jeevan Pani ji was one that rare person who not only at that crucial moment but even later has wiped my tears. उन्होंने कहा, फिर से रिपीट करती हूँ, ये लात नहीं थी, ये तुम्हारे पर आशीर्वाद गुरु का मान लो, मैं बताऊँगा तुम्हें क्यों. And then he said something very important, कि देखो एक वटवृक्ष के नीचे और पेड़ पौधे नहीं उग सकते. गुरु केलू चरण महापात्र जी शायद ऐसे एक वटवृक्ष बनेंगे, तब नहीं थे तब तक. तभी गुरु जी का भी एक बढ़ने का समय था, 1972. But what Jeevan Pani ji said, as if he had, एक भविष्यवाणी उन्होंने की कि तुम सही समय पे आई हो, उन्होंने जो सिखाया है उसको लेके हम आगे चलेंगे, मैं तुम्हें गाइड करूँगा. टुगेदर वी विल क्रिएट समथिंग न्यू. हम कुछ नया करेंगे. इनकी एक एक बात मेरे कान में गूंजती है और मेरी अपार श्रद्धा उनमें. देखिए, श्रद्धा के पात्र भी कौन बनता है? जिनमें इन्नेट गुडनेस, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं. जैसे मेरे पिताजी के बारे में कहा था, अजात शत्रु. जीवन पाणी जी एक्चुअली अजात शत्रु थे, बट उनका फील्ड ऐसा था कि जिसमें अपार ईर्ष्याएं. He never tom-tomed himself, he never spoke about himself. उन्होंने कभी अपनी बड़ाई नहीं की, कभी छाती ठोक के नहीं कहा, देखो ये मैंने कहा. जेंटल ऑफरिंग, लो ये मेरे विचार हैं. तो ऐसे जीवन पाणी जी ने 1972 से ये संभाला, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली.
उसके बाद उस वक़्त मेरा पहले विवाह का विच्छेद हो गया था और मैं अकेली थी वास्तव में। सोशल स्टिग्मा, गॉसिप्स, आई टोल्ड यू लॉन्ग टाइम अगो इन वन ऑफ माई सेशंस। जीवन पाणी जी और रेबा भाउजर, like that, behind me, the pillar of strength. और जीवन पाणी जी की श्रद्धा मेरे में कि मैं उनकी श्रद्धा के पात्र हूँ और वो जो मेरे में डालना चाह रहे हैं ज्ञान, मैं उसके पात्र हूँ। ये चली, पार्टनरशिप चली और आगे आगे बहुत कुछ हुआ। तो जैसे जैसे उनका कद बढ़ता गया, क्योंकि जब हम लोग साथ में जुड़े तो ही एडवाइज्ड मी, केरू सर तो निकल गए मुंह फेर कर, तो हरे कृष्ण बेहरा, another young budding teacher who had also learned from Keru Babu in the summer courses in कटक कला विकास केंद्र, और दिल्ली में वो भी आ गए थे ऑन आई थिंक स्कॉलरशिप टू लर्न पखवाज, नॉर्थ इंडियन पखवाज एट कथक केंद्र। उनको जीवन पाणी जी ने ईयरमार्क किया, उनको बुलाया। एट दैट टाइम हरि बाबू वाज लाइक सॉर्ट ऑफ, यू नो, बहुत ही ढीले ढाले बेचारे, जो भी छोटी मोटी स्कॉलरशिप मिलती थी उससे उनका गुजारा शायद नहीं हो पा रहा था। तो उनको जोड़ा, उनको कहा कि तू अपना ओडिसी पखवाज बजा पहले, ये जो सीख रहे हो वो तो सीखो, ठीक है। तो ओडिसी पखवाज की उसका जो वाणी है, उसका जो बाज है वो अलग है। नॉर्थ इंडियन पखवाज को आटा लगाना पड़ता है, आटा खाता है वो, जो बायां है चौड़ा। ओडिसी पखवाज में नहीं लगता है, स्याही लगती है और उसकी ध्वनि अलग है। तो उनके कहने से हरे कृष्ण बेहरा ने फिर अभ्यास शुरू किया, फिर मेरे साथ बजाना शुरू किया। रिहर्सल में जीवन पाणी जी आके बैठते थे, तब तक मैं राखी बांधना शुरू किया था। सो ही बिकेम माय जीवन दादा, जीवन दा फॉर शॉर्ट, माय ब्रदर। और हरे कृष्ण बेहरा को बताते थे, नहीं इधर ऐसा बजाओ, इधर ऐसा बजाओ, तुमने क्या सुना था केड़ू बाबू का याद करो, पंकज बाबू का याद करो, देव प्रसाद दास का याद करो। लाइक दैट ही बिल्ट अप, और मेरे साथ गाने के लिए भी लोगों को तैयार किया। हमारी नई रेपेट्री बनती चली गई। उसके बारे में मैं अगली सेशन में बात करूंगी, क्योंकि इट विल रियली रिक्वायर अ लॉन्ग टाइम। आगे चलती हूँ तो उन्होंने संगीत नाटक एकेडमी के लिए क्या नहीं किया। He was then absorbed, not absorbed, but he became program officer, and then I don't even remember, but I think he became deputy secretary, something, research officer वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत फील्ड वर्क किया संगीत नाटक के लिए, बहुत फील्ड वर्क किया। उनका ज्ञान चारों दिशा में था, puppetry, folk dances, instruments, masks, classical dances, costumes, films, photography, theatre. I mean, you cannot imagine the range of his interests, the range and the depth of his knowledge. पढ़ते रहते थे, and he used to live in Model Town. पहले वो ग्राउंड फ्लोर के एक छोटे फ्लैट में थे। एंड पुराने ज़माने के लोगों को याद होगा कि बहुत, आई थिंक इट वाज इन मे बी लेट 70s, बहुत बारिश हुई थी एंड देयर वाज फ्लडिंग। मॉडल टाउन के ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट में उनकी बहुत सारी पुस्तकें डूब गई। I mean, it was like he was crying like a child. और सुखा के जितनी बचा पाए, कुछ मेरे घर, मेरे उसमें ले आई, कुछ वहाँ, जितनी बचा पाए हम लोग। लेकिन जब वो उसके टाइटल्स दिखे तो मेरा माथा चकरा गया। कहाँ तो काफ्का,
लॉर्का, पाब्लो नेरूदा, शेक्सपियर, जेम्स जॉयस, और उड़िया लिटरेचर, और सूरदास की पदावली, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, ओरिजिनल महाभारत, संस्कृत के ग्रंथ. I mean, you know, it was amazing. ये सब मात्र दिखावे के लिए नहीं थे. They were not for show like in many libraries today. I'm sorry to say. काफ़ी बड़े बड़े घरों में लाइब्रेरीज आप देखिएगा चॉक ब्लॉक. कहीं तो ये भी सुना है कि खाली लेदर होता है, अंदर कुछ नहीं होता है, अंदर कुछ और ही होता है. He was never a show off. उनके लिखे हुए नोट्स मार्जिन में कमेंट्स, you knew that he had read each one of them and he had thought and absorbed. और वो कहाँ कहाँ वो ज्ञान निकलता था. तो ये होने लगा कि ओडिसी की जो टेक्निक थी, we went deeper into that. We went back into tradition, परंपरा. और जो परंपरा के नाम पे उस वक्त चल रहा था, उसकी कुछ चीज़ों को हमने री एग्जामिन किया. हमने यानी मैंने, जीवन पाणी जी ने, जीवन दा के गाइडेंस में मैंने, और पाया कि ये तो वास्तव में वो परंपराएं नहीं हैं, ये नई जोड़ी गई हैं. कोई बात नहीं, जोड़ी भी गई हो तब भी, जैसे गोटीपुआ के बारे में बात की थी ना हमने, गुरु केलुचरण महापात्र जी वॉज ऑल्सो गोटीपुआ अखाड़ा पिला. गोटीपुआ ट्रेडिशन का परंपरा चली जब एक्चुअल देवदासी, सामान्य दासीज, अलंकार दासीज, राजदासीज could not perform during the आक्रांता रूल. चले गए अंडरग्राउंड. तब राय रामानंद ने, मिनिस्टर ऑफ द पुरी महाराजा, आई एम रिपीटिंग दिस टू रिमाइंड यू, कि उन्होंने ये सोची ट्रिक और छोटे अखाड़ा पीला गोटीपुओस को तैयार करके लड़कियों की तरह चोटी ये सब करके उनको छोड़ा. सो दैट इज नॉट द ओरिजिनल ट्रेडिशन. And being young boys, as I always maintained, they could exaggerate their bodies like a girl wouldn't do. Even a young girl wouldn't do. And acrobatics. And the kind of abhinaya. And दाढ़ी में हाथ डालना and whatever. A girl won't do. Can't do. वो दोष हो जाता है और वो लड़की में है नहीं. So if that was now taken in 70s and 80s, and now it has become a big thing because of the acrobatic. जीवन दा rightly said कि वो तो बंध है, बंध नृत्य जो करते थे, करानास में भी बंध है. लेकिन जिसको हम ओडिसी कहें, जो एक रेपर्टरी, एक टेक्निक बांधनी है, उसमें इसको प्रमुख स्थान नहीं दिया जा सकता. उसके कुछ कुछ जो अंग हैं वो सोच समझ के, औचित्य के हिसाब से, यू नो द वर्ड औचित्य, आई रिपीट अगेन, उचित क्या है, अनुचित क्या है, what is proper, what is improper, what is exaggerated, what does not look nice, unaesthetic, वो नहीं लेना. तो ऐसी ऐसी बातों से हम लोगों ने अपना काम बढ़ाया. वही ओडिसी, लेकिन लोग कहने लगे कि भाई सोनल मानसिंह का ओडिसी तो बहुत अलग दिखता है, इट्स वेरी रिफ्रेशिंग, इट्स वेरी फ्रेश, इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स समथिंग न्यू. वो बात मैं फिर से बाद में आऊँगी. अभी जीवन दा के बारे में कह रही हूँ कि हिज सेंस एंड अक्यूट सेंस ऑफ ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स, उनका सौंदर्य बोध अद्भुत था. हर छोटी बात देखते थे, कोई बात उनकी आंखों से छूटती नहीं थी. इसने कैसे साड़ी पहनी है, डिज़ाइन क्या थी, कहाँ की थी, वो रंग सूट किया कि नहीं. और वहीं से मुझे भी, जैसे मेरे कृष्ण राव सर ने बोला था, बताया था, चंद्रभागा देवी जी ने, वैसे जीवन पाणी जी ने,
वही जो बात मैं कह रही थी, इतना बड़ा टाइया और इतने बड़े फूल और ये सब। उन्होंने मुझे कहा कि केरू सर यूज टू ड्रेस अप डांसर्स। मेरा भी उन्होंने मेकअप किया है केरू सर ने। तो पट्टचित्र जो होता है ना, पट्टचित्र, वैसे उनकी वो सारा बनाते थे हमारा मुँह, आँखें, आईब्राउज, ये सब भर देते थे, यहाँ यहाँ यहाँ। मैं तो खैर 2 ही पहनती थी, कई डांसर्स ने 4-4 पहने हैं, इतना बड़ा मैंने कहा ना बेंगपतिया। तो जीवन पाणी जी ने कहा कि सोनल, पीपल वॉन्ट टू सी डांस, ornaments and costumes are secondary. They should be beautiful, but they should be appropriate. There should be just enough to make you look good and give your figure the proper shape. लेकिन यदि प्रेक्षक की दृष्टि, if the audience, the viewer gets lost in all that, तो डांस कहाँ से दिखेगा? And if you see properly, मैं आप लोगों को ही बताती पूछती हूँ कि आज के मेजॉरिटी ऑफ डांसर्स जो आप देखते हैं स्टेज पे, लदे हुए। तो मैंने एकदम कम कर दिया फिर से अपना, एक यहाँ एक यहाँ, फूल भी ये छोटी, बहुत छोटी, उसके बाद रियल फूलों का। उसके बाद वीणा बहन शौक मेरे जीवन में आई, तो जीवन पाणी जी शी यूज्ड टू डिस्कस, और कितनी सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल्स। हम कोणार्क की बात करते हैं, मुक्तेश्वर की बात करते हैं, वहाँ कितनी तरीके के केश कलाप हैं, और ये सब, और ये चित्ता वगैरह बहुत सब कम कर दिया। फिर यहाँ वो नेल पॉलिश, यहाँ नेल पॉलिश से, यहाँ नेल पॉलिश से, पैर पे नेल पॉलिश से, सब खत्म कर दिया। मात्र हल्का अलता पिंक, so that your hasta mudras can be seen clearly. पैर पे भी बिल्कुल अलता, so that it's not pull up, your feet should be seen properly. देखिए ये मार्जिनल चेंजेस आप कहेंगे, लेकिन द टोटल पिक्चर, द इमेज क्या उभरती है? As I say, the dance should be seen. Dancer is only an instrument. Dancer is not, she is the medium. The dance has to be seen. तो जीवन पाणी जी ने इस तरीके से बहुत सारे चीज़ें समझाई, और वापस हम लोगों ने एक अलग गठन किया। मुझे गढ़ा उन्होंने, गढ़ा, स्कल्पचर गढ़ते हैं वैसे गढ़ा, मेरा दिमाग गढ़ा, मेरी थॉट्स गढ़ी, मेरी दृष्टि गढ़ी, मेरी समझदारी बढ़ी। और वहाँ से निकल के हम जब बाहर आए तो लोगों ने देखा। फिर आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट जीवन पाणी जी टू गिव इंट्रोडक्शन टू इन माई प्रोग्राम्स। लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस हमने किए जीवन पाणी जी के साथ, कुछ बहुत सारे फोटोज़ भी हैं। वर्कशॉप्स किए, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में भी किया। फिर लोगों ने देखा कि अरे ये तो मात्र एक छोटा मोटा ऑफिसर संगीत नाटक में नहीं है, ये तो कुछ और चीज़ है। तो फिर लोगों की आंखें खुली, और आज सुबह ही शोभना नारायण जी का छोटा मैसेज आया, कल रात को शायद आया होगा, देर रात, कि आई रिमेंबर गोइंग टू हिम फॉर सो मेनी थिंग्स, एंड उन्होंने मेरा मार्गदर्शन भी किया है। बहुत सारे डांसर्स आज के बड़े बड़े नाम उन्होंने जाना शुरू किया। उन्होंने कभी किसी को मना नहीं किया, ना मैंने जीवन पाणी जी को कभी कहा कि जीवन दा नहीं इतने को मत करो। नो नो नो, हुए मैं, वो तो मेरे भाई हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे मेंटर हैं, मेरे गुरु हैं, और उनका ज्ञान बांटने के लिए है। तो डांसर्स, उसके बाद पेंटर्स, थिएटर पीपल, एक्टर्स, स्कल्पचर्स, स्कॉलर्स, सब जाने लगे उनके पास। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कितनी बार उनको बुलाया गया, कई बार उनको विदेश भेजा गया एज लीडर ऑफ अ डेलीगेशन। उन्होंने कितने आर्टिकल्स लिखे, बुक्स लिखे, इसका पूरा लिस्ट है मेरे पास, वो मैं पढ़ूंगी यदि समय रहा तो। टाइम है होने दो। लेकिन
उन्होंने जो फिल्म बनाई रावण छाया उड़ीसा की पपेट्री पे, वो आज भी एक अकेली ऐसी फिल्म है, एंड दैट फिल्म वन द नेशनल अवार्ड ऑल्सो। मैंने, चलिए मैं अभी मेरी बात नहीं करूँगी, लेकिन जीवन पाणी जी को होते 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 संगीत नाटक में, संगीत नाटक एकेडमी के भी जो लोग थे कई बार उनसे पूछते थे, आज के तो लोग काफ़ी नए हैं, एक आध दो पुराने होंगे, लेकिन जो रिटायर हो चुके हैं उनको याद होगा कि कितनी मदद जीवन पाणी जी ने उन लोगों को की पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। बहुत लोग भूल चुके हैं या दे डोंट बॉदर। खैर, उनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर कथक केंद्र। कथक केंद्र इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ संगीत नाटक एकेडमी। 7 वर्ष वो उसके डायरेक्टर रहे। जब बिरजू महाराज भी वहाँ गुरु थे, बिरजू महाराज के कितने सारे शिष्य वहाँ से तैयार होकर निकले हैं, इंक्लूडिंग शाश्वती सेन जो अभी खुद तैयार कर रही हैं, महाराज जी की अनन्य शिष्या। बहुत सारी शिष्याएँ हैं, लेकिन शाश्वती सेन शायद आजीवन वो गुरु भक्ति में रही हैं, और उन्होंने भी जीवन पाणी जी से बहुत लिया। तो बिरजू महाराज ऑल्सो यूज्ड टू कॉल हिम दादा, और जीवन पाणी जी की सलाह से, मार्गदर्शन से कथक जो एक दायरे में बंधा हुआ था, वहाँ से जीवन पाणी जी ने कहा कि आगे बढ़िए, इसको विस्तृत कीजिए, थोड़ी हस्त मुद्राएँ लाइए, ताथी तथथे और ये वो, ठीक अच्छा है, लेकिन शास्त्रीय यदि कहा जाता है तो कुछ और बातें होनी चाहिए। महाराज जी ने मानी, बिरजू महाराज जी ने, उनका बहुत ज़्यादा स्नेहल संबंध था, संवाद था, और रेपेट्री भी बढ़ाई जीवन पाणी जी ने। बहुत सारी नई आइटम्स तैयार हुई, बहुत सारे नए नृत्य नाटिकाएँ तैयार हुई। जीवन गाने वहाँ भावलपुर हाउस में था कथक केंद्र, सामने जो आज नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है वहाँ। तो वहाँ उन्होंने लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन की सीरीज शुरू की कि बाकी नृत्य प्रकारों को, शास्त्रीय विधाओं को बुलाइए, उनसे भी आप ये सारे सुनिए, अपना दिमाग खोलिए। तो मैंने भी वहाँ पे 2-3 बार किया था लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन, और शाश्वती वगैरह बहुत याद करती हैं कि दीदी आप आती थी। I used to be a frequent visitor जीवन पाणी जी के पास। जीवनदा जहाँ गए वहाँ मैं उनके पीछे जाती थी, पूछने, शेयर करने, कुछ समथिंग। उनका मॉडल टाउन का घर बदला हुआ था, बरसाती में चले गए थे, आई थिंक 3rd फ्लोर बरसाती, छोटी सी 2 कमरे, और जीने के नीचे एक छोटा सा जो होता है वहाँ पे किचन, रसोई घर, जस्ट इमेजिन, और छोटी सी बैल्कनी। जीवन पाणी जी वॉज वेरी हैप्पी, सेटिस्फाइड। उनके 5 तक बच्चे वहीं बड़े हो रहे थे, एंड he set up a little balcony garden. We used to love his vegetables and flowers that he was growing. ये लेमन ग्रास है, वो लेमन ग्रास काट के चाय में पड़ना चाहिए, लेमन टी, लेमन ग्रास टी, ये टी, वो टी। एंड भाउजा, मेरी भाभी रेबा भाउजा, she used to produce fantastic food. Now Jeevan Pani was a slightly more demanding husband. He was a foodie. कोई भी चीज़ उनको इधर उधर नहीं, उनको ये चाहिए तो चाहिए। सी फूड, you know, all Odias love sea food, especially from Puri and you know that. Oh my God, Bhauja had to every day go to shop and look for the best fish, the best chinguri, shrimp, the best prawn. Oh my God, and how many ways to prepare. That Jimanda was also wonderful cook. तो उन्होंने भी सिखाया अपनी पत्नी को। तो मुझे याद है तब मैं शुरू के वर्षों में, बिफोर माई एक्सीडेंट एंड रिकूपरेशन, आई वॉज वेजिटेरियन। बाद में भी आई यूज्ड टू प्रेफर दैट, बट भाउजा यूज्ड टू प्रोड्यूस फैंटास्टिक मील्स। अच्छा, वहाँ रसगुल्ला बना, खोजा, तरह तरह के पिठा और तरह तरह के नमकीन और पकौड़ाज एंड अन्नपूर्णा।
तो छोटे से दायरे में इस परिवार ने समुद्र भर दिया था, रस का, सुगंध का, ज्ञान का, प्रेम का, और बांटा था। तो मैं एक चीज़ और कहना चाह रही थी कि मैं फिर वहाँ चली गई। एनीवे डजंट मैटर। तो इतना सारा लिखा हुआ है, अभी तो इतना ही है, और पढ़ा हुआ है कि जीवन पाणी जी ने अपने जो वर्ष वहाँ पे बिताए उसमें उनको संगीत नाटक एकेडमी की ओर से विशेष कुछ नहीं मिला, लेकिन ल्यूमिनरीज लाइक अलकाजी, कमला देवी जी, so many others, साहित्यकार, they all used to love him, respect him and invite him to discuss things. कुछ ऐसे भी थे आज के बड़े नाम who were so jealous, नाम नहीं लूंगी, बड़े नाम हैं आज के, पब्लिक में उनके ऐसे करके बात करते थे, क्रिटिसाइज, टेढ़िए, कटाक्ष, हाँ हाँ ये तो बड़े ज्ञानी हैं, ह्यूमिलिएटिव, परफेक्ट उनके काम में नुक्स निकालना। मेरे यहाँ आके C304 में जीवन पाणी जी ने आंसू बहाया, तो मैंने भी उनके आंसू पूछे हैं, मेरे बड़े भाई के, मेरे गुरु के। ऐसे ज्ञानी निर्दोष व्यक्ति पर लोगों ने इतना जुल्म जो किया है, मैं चाहूं तो आई कैन नेम एंड शेम देम इवन टुडे, बट आई विल नॉट डू इट। मैं मात्र अध्यार में कह रही हूँ, समझने वाले समझ जाएंगे। कुछ दिल्ली में है ज़्यादातर, लेकिन मैं कहे बिना नहीं रह सकूंगी कि कथक केंद्र से रिटायर हुए, यानी संगीत नाटक एकेडमी से रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद जो उनको पेंशन मिलना चाहिए था और जो भी ड्यूज थे, उसके लिए संगीत नाटक के उस वक्त के दी देन सेक्रेटरी एंड अदर कपल ऑफ पीपल, एक गुड गैंग, पीपल whom he had helped, मदद की थी, बट दिमाग घूम जाता है छोटे ओछे लोगों का, एक कुर्सी पे बैठ के जो दिमाग घूम जाता है, उसका ये प्रमाण और एग्जाम्पल। they made him run from pillar to post, ओडिशा 2 बार 3 बार, वो स्टेट एजुकेशन सर्विस के पेपर्स ला के फोटोकॉपी करा के फाइल बना के दिए, 2 बार के फाइल खो गई, फिर बनाइए, पेंशन रुके हुए, हैंड टू माउथ हो गए। आई डोंट वांट बट आई हैव टू से टुडे कि कैसे मांगा जाए, कैसे कहा जाए कि आई नीड मनी। कुछ किया। They were not releasing his pensions and dues. He had to go to High Court. दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने संगीत नाटक के खिलाफ केस किया, यहां तक ये नौबत आ गई। Can you imagine what his system went through? What a shock! जिनको हमने अपना माना, और क्यों किया ऐसा, कोई पूछे, कोई क्यों किया, कोई उत्तर नहीं मिलेगा, बस हैरेसमेंट। एक जो कहते हैं ना बाबूगिरी, अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत खराब एक बन गया है वाकया। That's a bad phrase. The arrogance of bureaucracy that we can harass. छोटी bureaucracy, छोटे लोग। And he died of that broken heart in his sleep. He passed away on 2nd September
1998। मुझे याद है सुबह सुबह फ़ोन आया और 7 बजे तक तो मैं उनके मॉडल टाउन घर पहुंच गई थी। I think I had a small that Maruti 800. छोटे मैंने the children were not that grown up. House had passed out. कुछ वो neighbors नीचे के अभी इतना फैला नहीं था। I had to quickly take charge, control और उनका जो भी उपचार करना था, शुद्धि करनी थी, दिया प्रगटाना, ये जो हम लोग करते हैं रुई वगैरह, एंड फिर बांस आया, वो बनवाया, उस पर उनको बांधा। तब तक भाऊजा, I mean she was in a vacuum and the girls were just mother, लड़के भी कोई बड़े इतने नहीं थे। एम्बुलेंस had been called। वो बरसाती से मैंने कांधा दिया, brought him down, एम्बुलेंस में रखा, बिजली में एक झटका आया और ये झटका दादा सुन रहे, साथ में मैं गई, उनका बड़ा बेटा आया, एंड आई थिंक भाऊजा के भाई, उनके 2 भाई, 2-3 भाई, 2 तो थे। निगम बोध घाट पे व्यवस्था की थी, उनको नहलाने ले गए और फिर वहीं से मैं साथ में आई, उनको रखा गया चिता पे। सबसे पहली लकड़ी मैंने रखी मेरे जीवनदा, जो जिनकी मृत्यु हुई उस धक्के से, जिन्होंने उनको इस घाट पे पहुंचाया, भगवती उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। एक महान आत्मा का ऐसा जाना आप सोच नहीं सकते कि हमारे सो कॉल्ड कला के क्षेत्र में, which is supposed to be full of ananda and saundarya and beauty and what not, we talk big, but what छोटे लोग, शुद्र क्षुल्लक बुद्धि के लोग इसमें भरे हुए हैं, जो दूसरों का बिगाड़ने में पीछे नहीं हटते हैं, अपनी लकीर तो लंबी नहीं खींच पाते, दूसरे की लकीर मिटाने में लगे हुए होते हैं। जीवन पानी जी, मेरा सबसे पहला काम ये हुआ कि मैंने जीवन पानी फेस्टिवल शुरू किया। जीवन पानी मेमोरियल फेस्टिवल 1998 से शुरुआत हुई और हर वर्ष 13 वर्ष तक हम करते गए, प्रति वर्ष। उसमें पंडित बिरजू महाराज जी, शाश्वती, बहुत और स्वप्न सुंदरी जी, वहाँ से कुमकुम महंती, बहुत लोगों ने नृत्य किया और जीवन रत्न सम्मान वो मेरे सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस ने देना शुरू किया। 1977 जब स्थापना हुई थी, जीवन पाणी जी was the first one to sign. He was my founding member. जीवन रत्न सम्मान सबसे पहले डॉक्टर सीताकांत महापात्र को दिया गया, उड़ीसा के, आज भी जीवित हैं, महान लेखक, ऑथर, IAS ऑफिसर थे, कल्चर सेक्रेटरी थे। कल्चर के यानी संस्कृति मंत्रालय में हमने कैसे कैसे ल्यूमिनरीज को देखे हैं। डॉक्टर सीताकांत महापात्र, द थिएटर पर्सन भास्कर घोष, डॉक्टर वैद्यनाथ अय्यर एंड अ फ्यू अदर्स। आज के जो ब्यूरोक्रेसी है, कुछ उनसे पाठ ले, कुछ जाने कि कैसे कैसे लोग संस्कृति मंत्रालय में बैठ के कलाकारों का सम्मान करते थे, कला का आदर करते थे, कला क्या है जानते थे, जानने की कोशिश करते थे। हमारे वाल्मीकि प्रसाद जी, एज कल्चर सेक्रेटरी, ही स्टार्टेड
the salary grant, repertory grant, जो बाद में salary grant scheme. He started the National Culture Fund. ऐसे ऐसे लोग हो गए. तो पहला सम्मान हमने दिया डॉक्टर सीताकांत महापात्र को. उसके बाद डॉक्टर प्रियंवदा मोहंती, डॉक्टर मीनती मिश्र और हमारे संगीताचार्य श्री बंकिम सेठी जी. जानबूझ के प्रतिवर्ष हमने नहीं दिया, चुन चुन के दिया और अभी भी देंगे. अगले वर्ष जब फेस्टिवल होगा तब भी देंगे. इस वर्ष का तो फेस्टिवल हो नहीं पाया अप्रैल में, तो जीवन पानी फेस्टिवल शुरू किया हमने. 2003 दिसंबर 18 को मुझे संगीत नाटक एकेडमी का चेयरमैन नियुक्त किया गया. श्री जगमोहन जी संस्कृति और पर्यटन मंत्री थे. उनका फ़ोन आया और कहा कि मैं घर आना चाह रहा हूँ, लेकिन अटल जी ने बुला लिया है तो मैं इसके बाद आता हूँ. मैंने कहा नहीं, आपको आने की आवश्यकता नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद. uन्होंने फूल भिजवा दिए और फिर फूल लेके जो सेक्रेटरी महाशय थे वो भी पधारे. उसके बाद मैंने जब चार्ज लिया, जिस दिन, शायद दूसरे ही दिन मुझे जाना पड़ा था, तो मेरा पहला काम ये हुआ कि मैंने धिंगड़ा जी को कहा. धिंगड़ा who was the PS to 7 including me, 7 chairman. 7, मैं 7वीं थी, 7 चेयरमैन को उन्होंने, ही वॉज द पर्सनल प्राइवेट सेक्रेटरी. हाँ, बहुत देख रखा है, टॉल फेलो, रियल पंजाबी, हट्टा कट्टा, ब्ला ब्ला ब्ला. अब मैं छोटी सी महिला. तब तक तो आई थिंक कमला देवी जी के बाद आई वॉज द सेकेंड वुमन टू बिकम चेयरमैन. और फिर वो डॉक्टर नारायण मेनन और गिरीश अपने कौन थे, अपने थिएटर रंगकर्मी कारनाड, गिरीश कारनाड, और ये जमशेद भाभा, बहुत देख रखे. मुझे याद है कि जेब में हाथ रख के आए, दोनों जेब में हाथ थे. तो मैं कुछ बोली नहीं. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि दिस इज़ अ बैड हैबिट ऑफ मैनी इंडियन मैन. हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ अ लेडी, अ वुमन, आज नहीं सीखे हैं, मैं सिखा रही हूँ, बता रही हूँ, और मैं ओपनली बोलती हूँ. इसमें स्त्रियों को शर्म करने का कुछ नहीं, पुरुषों को शर्म करनी चाहिए. कैसे तमीज से बैठना, पैर जोड़ के. मोदी जी को देखिए, लंबे कुर्ते पहनना, छोटी सी कुर्ती पहन के पैर चौड़े करके बैठ जाते हैं, वल्गर. और ये जेब में हाथ डालना. तो मैं देखती रही, मात्र उनके हाथ को देखती रही जेब में. फिर उनको फाइनली यानी ही फिर हाथ निकाले. देन आई लुक्ड अप एट हिम. मैंने कहा, धिंगड़ा जी, आइंदा आपके हाथ पीछे बांध के रखिए. मैंने कहा, ठीक, पीछे हाथ बांध दीजिए. जेब में कभी भी डालेंगे तो यू विल गेट आउट ऑफ हियर. आई विल हैव टू चेंज PS. इतना कड़ा मैंने उनको उस दिन कहा. ही मे नॉट हैव टोल्ड दिस टू एनीवन एल्स. मेरा पहला काम था, मैंने कहा, सुन लीजिए, श्री जीवन पाणी जी की फाइल मुझे आधे घंटे में बाहर चाहिए, मेरे टेबल पे. जो करना पड़े, अलमारियां खाली करवाइए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, जो करना पड़े कीजिए. वो नाम सेक्रेटरी का. मैंने कहा, चेयरमैन कौन है, वो या मैं? नहीं. आधे घंटे के पहले द फाइल वॉज ऑन माई टेबल. देन आई कॉल्ड द सेक्रेटरी. आई सेड, चेक तैयार कराओ, साइन इट, गिव यू 1 hour. चेक तैयार हो गए, साइन हो गई, लिफाफे में डाला. आई सेड, राइट अ लेटर ऑफ अपॉलॉजी. वो चिट्ठी बंद किया. धिंगड़ा, मेरी गाड़ी लेके जाइए चेयरमैन की, गो टू मॉडल टाउन, मीट मिसेस पाणी, हाथ जोड़ के उनको दीजिए. वहाँ से वो मुझे फ़ोन करेंगी कि तुमने दिया है, तब आप वापस आएंगे. आई कॉल्ड अप मिसेस पाणी. शी सेड, अरे सुन, रोने लगी. तो धिंगड़ा जब पहुँचे, दिया, फ़ोन किया. मैंने कहा, भाव से पहुँच गया, धिंगड़ा है वहाँ पे? हाँ, अच्छी, ओके, गिव इट टू हिम.
मैंने कहा झगड़ा वापस आओ. I'm not saying that I'm great, I'm nothing. But do we not owe, all of us, do we not owe some gratitude, thanks to the people who made us, not us. They made so much of what we call Indian cultural traditions today. कितना ज्ञान बांटा, कितनी मदद की, निसंकोच, निःशुल्क. I don't think he charged money from any dancer to advise them or to give them proper advice or to tell them कि ये पढ़ो, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो. I don't think so. आज हम लोग एक बात बोलने के लिए, मैं तो नहीं, I am also idiot like that. क्या चल रहा है मुझे पता है. जीवन पाणी जी का चरित्र प्रातस्मरणीय है. He was a handsome, अगले सेशन में दिखाऊंगी उनका फोटो. Handsome, wiry man, thick hair, short and springy gait, always उत्साह. तो मैं कहती, वो जो शिवजी पार्वती का पहला पुत्र स्कंद कार्तिकेय, स्कंदयति इति स्कंद यानी उछलता है, तो स्कंदयति इति जीवन पाणी, ऐसे चलता और उत्साह से भरे हुए. तो उनके उत्साह ने मेरा कितना ज्ञान वर्धन किया वो मैं आपको अगले वक्त बताऊंगी. लेकिन आज के लिए मैं फिर से एक बार अगले वक्त बताएंगे. आज फिर एक बार उनका स्मरण मनन चिंतन करते हुए घुटने पे नमस्कार करती हूँ. भावजा इस वर्ष ही गई है फरवरी में, और वो मेरी भावजा रही, गुरु पत्नी रही, भाभी रही, और उसके बाद भी हर एक गुरु पूर्णिमा पे आती रही, मेरे वर्षगांठ पे आती रही, दशहरा विजयादशमी पे आती रही. मैं क्या कर सकती हूँ, मात्र आपके साथ कुछ उनकी जीवन गाथा के पन्ने मैंने फेरे हैं. बहुत सारा बाकी रह गया है, थोड़े में बहुत कहना चाह रही थी, बाकी का अगले सोमवार को कहूँगी. आज के लिए प्रणाम उनको ही करती हूँ, और आप जो जो सुन रहे हैं आपको भी प्रणाम करती हूँ. आप भी स्वस्थ रहें, उत्साह से भरे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें. प्रणाम.